A very wonderful good morning to all my lovely students of 9th grade. I definitely hope that you all must be doing your written work, and of course you must be learning very hard, okay? And students, definitely as recently we have celebrated our 74th Independence Day, I do hope that you all must have, of course, just given a thought about how you can save and make India more prosperous and take India to the greater height. Okay, as you all are elder students, now you are in senior classes, okay, you must start developing your thinking, your views about your country, your schooling, your living place, means all these things. When you develop your views, all these views help you in, of course, maintaining a good balance of your views when you are attempting a writing skill. Okay, that was the reason I have given you an activity on the occasion of Independence Day. And of course, I definitely know that every student has done that activity with sheer joy and pleasure. Okay, so now from today, of course, we'll be resuming our studies. Okay, and of course, in our last class, we have studied about Evelyn Glennie. Okay, a musician, a remarkable musician we have studied about. Okay, so the story was still not ended, we were still going through the story. Okay, and of course Evelyn, okay, her mother said that the loss of hearing for Evelyn was gradual. Okay, what is gradual, students? Gradual क्या होता है? What is gradual? It is slowly. Okay, धीरे धीरे, slowly. Okay, slowly Evelyn became deaf. But her deafness, okay, but students, of course, her deafness was not able to stop her from becoming a wonderful musician. Okay, students, Evelyn भले ही सुन नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को अपनी ताकत बनाया, है ना? लास्ट एक्सप्लेनिंग में हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड कैसे बनाया अपनी ताकत. ऑफ कोर्स शी स्टार्टेड लिसनिंग फ्रॉम अदर चैनल्स अपार्ट फ्रॉम ईयर्स. ठीक है, किसने बताई थी उन्हें ये बात? बताइए, मुझे नाम बताइए, किसने बताई थी? आई टोल्ड यू इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इनका नाम याद रखना है आपको. रॉन फॉर्ब्स ने. ठीक है स्टूडेंट्स, रॉन फॉर्ब्स ने एवेलिन को गाइड किया था दैट यू शुड, ओके, open your mind, of course, and body to sounds and vibrations. Okay, and of course rest was the sheer determination and hard work of एवेलिन. राइट स्टूडेंट्स, तो उन्हें थोड़ी सी गाइडलाइंस दी थी रॉन फॉर्ब्स ने, एंड उसके बाद एवेलिन के लिए पीछे मुड़ के देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज एवेलिन विद हर डिटर्मिनेशन, ओके, अपने संकल्प से, अपने दृढ़ निश्चय से हमारी एवेलिन ने
इतनी मेहनत करी दैट शी बिकेम अ फाइनेस्ट म्यूजिशियन। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, जब उन्हें एडमिशन मिला था यूनाइटेड किंगडम ओके में, ऑफ कोर्स वहाँ पे उन्होंने यूथ एक ऑर्केस्ट्रा भी ज्वाइन किया। और इतना ही नहीं, स्टार्टिंग में तो वो ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी, शी यूज्ड टू परफॉर्म इन अ ग्रुप, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली शी बिकेम सो कॉन्फिडेंट दैट शी स्टार्टेड गिविंग solo performances. On that day also we have discussed this solo performances. Okay, solo means single, okay, without any other partner, right students? And like this, of course, during her 3 years of course, she was able to capture most of the top awards. Okay, जितने भी उस academy में टॉप अवार्ड्स थे वो हमारी एवेलिन ग्रैब कर चुकी थी, राइट स्टूडेंट्स? ओके, यू गॉट द पॉइंट नाउ। ओके, नाउ लेट अस रीड फर्दर, इट इज एट पेज 18, okay, it is the 5th paragraph from where we will begin today. Okay, I hope you all must be sitting with your open textbooks. Okay, right? So let us read now. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. Okay students, of course, देखिए of course हमारी एवलिन ने इतने गजब का बिल्कुल किसी हीरो की तरह एक काम कर दिखाया, लेकिन एवलिन बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं समझती थी कि ओ आई हैव डन वंडर्स, मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने करी है, ऐसे नहीं मानती थी वो बिल्कुल भी। शी वॉज अ डाउन टू अर्थ लेडी। ठीक है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि मैंने कुछ बहुत कमाल का कुछ गजब किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, रीज़न क्या था स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स शी वैल्यू हर हार्ड वर्क। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करती थी एंड फाइनली देखिए वो क्या बन चुकी थी, मल्टी परक्यूशनिस्ट, एंड करीब थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजाती हैं, बजा सकती थी। इज़न्ट दैट वंडरफुल? हम और आपको क्या एक इंस्ट्रूमेंट सीखने में ही पूरी लाइफ चली जाती है, बट हमारी एवलिन शी हैड लर्नड टू प्ले thousands of instruments alone and she became multi-percussionist. ठीक है, multi-percussionist, ठीक है, percussionist कौन होता है? उस दिन बताया था हमने, जो ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, जाइलोफोन्स बजाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एवलिन थी ये मल्टी टैलेंटेड हो चुकी थी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स शी वाज मल्टी परक्यूशनिस्ट। गॉट द पॉइंट? ओके, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. Okay students, अब देखिए एक और क्वालिटी है हमारी एवलिन में। ठीक है, of course एवलिन को किसी भी फंक्शन में देखना, ठीक है, जहाँ पे वो परफॉर्म करती हैं, दैट इज इंट्रोड्यूइंग। इंट्रोड्यूइंग क्या होता है? फैसिनेटिंग, कमाल का, एकदम गजब का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, क्योंकि एवलिन इतनी मार्वलसली अपना काम
करती हैं, इतनी एफर्टलेसली, ठीक है, अपने परफॉर्मेंसेस को वो देती हैं एवेलिन जो हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स नाउ जो ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि राउंड अबाउट 2 hours वी चैटेड विद ईच अदर. तो उसमें एवेलिन ने क्या बताया कि जो मेन है ना, जिन मेन की बुशी बियर्ड होती है, बियर्ड क्या होती है आपको पता है स्टूडेंट्स, बियर्ड यू ऑल मस्ट बी नोइंग. सपोज दिस इज अ फेस, okay, these are eyes, this is nose, these are mustaches, this is face and these are the bushy beard. ठीक है, बुशी बियर्ड क्या होती हैं, ठीक है, ओके, पूरी तरह से बियर्ड से भरा हुआ फेस, ठीक है, वो बुशी बियर्ड है. अब हमारी एवेलिन कहती हैं ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है मीटिंग्स में. क्यों, रीज़न क्या था? क्योंकि एवेलिन स्टूडेंट्स दूसरों की जो बातें हैं वो लिप्स की मूवमेंट से समझती थी, ठीक है, एंड स्पेशली द आईज, ठीक है, जो आईज की मूवमेंट होती हैं, हमारी जो आईज की मूवमेंट होती हैं, आईज से क्या एक्सप्रेशंस निकलते हैं आपको पता है? आईज से निकलते हैं इमोशंस, ठीक है. तो हमारी जो एवेलिन है वो कहती हैं कि जो बुशी बियर्ड वाले लोग हैं उनसे मुझे बहुत मतलब बात करना अच्छा नहीं लगता मीटिंग्स के दौरान, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स शी लाफ्स आल्सो व्हेन शी टेल्स दैट द बुशी बियर्ड मैन गिव्स मी ट्रबल, शी लाफ्स आल्सो, ओके. एंड ऑफ कोर्स फाइनली शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, ठीक है, वो बिना कोई मिस्टेक किए बोलती थी. कौन सी लैंग्वेज? स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटलैंड की थी वो, हमने आपको बताया था, ठीक है. तो उनकी मदर टंग क्या हुई? स्कॉटिश, ठीक है. अब एवेलिन ये बताती हैं कि मैं फ्लॉलेस इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं जब 11 ईयर्स तक की हुई तब तक मुझे सुनाई देता था, ठीक है, तो मुझे इसलिए बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बट इसके साथ ओके उन्होंने कौन सी लैंग्वेज सीखी थी स्टूडेंट्स, बता सकते हैं आप? फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, ओके. उनकी अपनी मदर टंग क्या थी? स्कॉटिश, लेकिन उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी थी. और ये बताना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने इसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, ओके. इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्लेन, ओके. किसी भाषा को सीखना आसान नहीं होता स्टूडेंट्स, ओके. लेकिन हमारी एवेलिन ने ना सिर्फ म्यूज़िक सीखा बल्कि एक और लैंग्वेज भी सीखी, ठीक है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर, ओके. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. Is that clear, students? Okay, you got the point. Okay, is that clear? Now, students, एवेलिन ये बताती हैं कि as far as the music is concerned, है ना, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, right?
ओके एवलिन ये कहती हैं स्टूडेंट्स कि जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है तो म्यूज़िक मेरे बॉडी के हर पार्ट से बहता है, ठीक है, और मैं उसे ऑब्ज़र्व करती हूँ, ठीक है, ओके। एंड ऑफ कोर्स मेरे स्किन में वो टिंगल्स करता है, झंझनाहट होती है। जैसे आपने कोई गरम कप पकड़ा सपोज, ओके, हॉट कप एकदम पकड़ते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, एकदम पीछे करते हैं ना, तो क्या हुआ, वो रिएक्शन होता है, टिंगलिंग होती है, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही इनका स्किन जो है, जब लाउड वॉइस कोई सुनता है म्यूज़िक से रिलेटेड तो वो टिंगल करता है, झंझनाहट होती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ओके जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो उनकी जो फिंगर टिप्स हैं, जाइलोफोन किससे बजता है बताइए बताइए बताइए। यस, जाइलोफोन इज ऑलवेज प्लेड विथ, देखा आपने, इस तरह की स्टिक्स होती हैं, 2 स्टिक्स होती हैं जिनसे जाइलोफोन बजाया जाता है स्टूडेंट्स, ओके। तो जैसे वो प्ले करती थी तो हमारी एवलिन क्या बताती हैं, एवलिन ग्लेनी, कि व्हेन आई यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक शुड पास, इज एबल टू पास इन माई फिंगर टिप्स, मेरे है ना फिंगर्स के जो टिप्स थे, वो जो म्यूज़िक की आवाज़ है वो उनके थ्रू मेरी बॉडी में आती थी, ठीक है, ओके, यू गॉट द पॉइंट। उनके थ्रू मेरी बॉडी में आवाज़ कंप्लीटली आती थी, ओके। एंड फर्दर वो क्या कहती हैं दैट ऑफ कोर्स अगर कभी मेरा जो स्टेज है ना, अगर वो वुडन होता है, ठीक है, अगर वो वुडन प्लेटफॉर्म पे होता है तो वो क्या करती थी, क्या करती थी ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, ओके, ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म वो बेयर फीट होकर परफॉर्मेंस देती थी। बेयर फीट का क्या मतलब होता है, नंगे पाँव, ठीक है, तो एकदम बेयर फीट होकर वो अपने परफॉर्मेंस को देती थी अगर वुडन प्लेटफॉर्म पे होता था तो, ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। एंड ऑफ कोर्स क्यों देती थी, ताकि उस वुडन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो उनकी बॉडी में चैनलाइज हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या बताया जा रहा है एवलिन के बारे में, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any one of us. That is why she expresses music so beautifully. Okay? अब एवलिन के बारे में हमारे जो प्रिक्यूशनिस्ट हैं, मास्टर प्रिक्यूशनिस्ट कौन है, जेम्स ब्लेड, ठीक है, जेम्स ब्लेड ने हमारी एवलिन के बारे में क्या कहा स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कहा कि एवलिन, ऑफ कोर्स एवलिन से भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन है ना, लेकिन क्या किया, अब वो म्यूज़िक को, ठीक है, म्यूज़िक को हम लोगों से भी ज़्यादा सुनती भी हैं और महसूस भी करती हैं, ठीक है, ओके। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुन के भूल जाते हैं,
लेकिन हमारी एवलिन, ठीक है, उसे सुनती हैं और महसूस भी करती हैं. दैट इज़ द रीज़न शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस. अच्छा स्टूडेंट्स, ओके. एंड इसी के साथ साथ 1991 में उन्हें रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रेस्टिजियस, खास, बहुत ही यूनिक अवार्ड दिया गया था बेस्ट सोलोसिस्ट का. सोलोसिस्ट कौन होते हैं? जो सिंगल परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है. तो देखिए इतना बड़ा अवार्ड भी हमारी एवलिन को मिल चुका है, ठीक है. नाउ एवलिन अपने बारे में क्या बताती हैं? दैट शी इज़ अ वर्कaholic, ठीक है. उन्हें बस काम करना बहुत अच्छा लगता है. शी सिंपली लव्स टू वर्क, ओके. एंड ऑफ कोर्स शी वर्क्स इवन हार्डर दैन द अदर क्लासिकल म्यूजिशियंस, ठीक है. दूसरे जो म्यूजिशियंस वगैरह हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा हार्ड वर्क वो करती हैं, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, हमारी जो एवलिन है वो बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाती हैं. एंड अपनी जो भी अर्निंग है उसमें से वो डेफ फंड के लिए चैरिटी भी करती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स वो प्रेजेंस, देखिए ये बहुत ही उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही एडेड प्लस पॉइंट है, ओके. क्या है? Okay, she also gives performance in prison and hospitals also. Prison क्या होते हैं? जेल, ठीक है स्टूडेंट्स. वो जेल में भी परफॉर्मेंस देती हैं एंड हॉस्पिटल्स में भी अपने कंसर्ट्स करवाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स एवलिन वो सब कुछ अचीव कर चुकी हैं जो आज भी उनसे दुगनी एज वाले लोग भी अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है. नाउ दिस इज द कंक्लूडिंग पैरा. आई एम रीडिंग इट आउट टू यू, राइट. द कंक्लूडिंग पैरा, दिस इज Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Okay? You got the point, students? Okay? What Evelyn is saying, of course, Evelyn has achieved. एवलिन ऑलरेडी इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में पा चुकी हैं स्टूडेंट्स जो आज भी उनसे दुगनी एज वाले नहीं पा सके, है ना. एंड परक्यूशन को, है ना, वो स्टेज के फ्रंट पर ले आई हैं. पहले ज़माने में जैसे तबला, ड्रम्स एंड ज़ाइलोफोन्स, ऑर्केस्ट्रा जब लगता था स्टेज पे पीछे रहा करते थे. लेकिन एवलिन ने इतने कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए हैं कि जो ऑर्केस्ट्रा है उसमें परक्यूशन की जगह इन द फ्रंट आ चुकी है, बिल्कुल सामने आ चुकी है. ओके स्टूडेंट्स, राइट. एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इंस्पिरेशन दी है, ठीक है, उन्होंने इंस्पायर किया है हैंडीकैप्ड लोगों को, है ना. हैंडीकैप्ड लोग क्या सोचते हैं यूजुअली, अरे हम में तो ये कमी है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू डू दिस, है ना. बट ऐसा कुछ नहीं है.
ओके उन्होंने उन्हें एक मोटिवेशन दी है, एक रास्ता दिखाया है कि कोई बात नहीं, अगर आप डिसेबल्ड हो, अगर आप हैंडीकैप्ड हो, फिर भी आप जो ज़िंदगी में करना चाहो उसे कर सकते हो, उसे अचीव कर सकते हो। ओके एंड ऑफ कोर्स इससे उन्हें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि अरे जब एवलिन ग्लेनी कर सकती हैं तो हम भी इस काम को कर सकते हैं, राइट? इफ शी कैन डू इट वी कैन ऑल्सो डू इट स्टूडेंट्स। ओके एंड अबव ऑल एवलिन ग्लेनी ने हजारों करोड़ों सैकड़ों लोगों को क्या दिया है? प्लेजर। प्लेजर क्या होती है? खुशी, हैप्पीनेस, ओके सेटिस्फैक्शन। कैसे दिया ये सब? ऑफ कोर्स अपने सोलफुल म्यूजिक के थ्रू, ठीक है? अपना इतने अच्छे कॉम्पोजिशंस उन्होंने करे हैं, इतना अच्छा म्यूजिशियन वो बन चुकी हैं दैट she gives immense pleasure to millions of people, okay? Not only in one country but around the world. Is that clear students? ओके डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमें अपनी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ेस को नहीं रखना चाहिए। अभी देखा ना आपने, एवलिन ने अगर एक्सक्यूज़ बनाया होता तो क्या वो बन पाती इतनी कामयाब? नहीं। ओके तो आप अपनी ज़िंदगी से एक्सक्यूज़ेस को हटा दीजिए एंड लिव योर लाइफ विद हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स सक्सेस विल कम टू यू definitely if you are working hard. Okay, no matter whatever physical problems you have, okay, there is no end to your hard work, and success will come to you if you are working hard with determination, just like Evelyn Glennie. Am I clear students? Okay, right? That is all from my side, my lovely students. Okay, in tomorrow's class of course we will study our further second part of this chapter. Is that clear? Okay, have a wonderful day ahead my lovely students. God bless you all.